Hello guys, namaste and welcome to day 2 review of third England versus India test being played at Lord's Cricket Ground, London. So England's inning has ended on 387 for 10 in 112.3 overs. So a long day of bowling has ended for India. So let's look at how the flow of events happened. So on the very first ball of day 2, Root completed his 37th hundred and his 11th hundred versus India, and he has equaled Steve Smith's record. Steve Smith has also scored 1100 versus India. So many congratulations to Joe Root. Um, though he couldn't add much to his total, his overnight total was 99 and he was dismissed on 104 of 199 deliveries by Jasprit Bumrah. Again, अगर हम dismissal की बात करें तो Bumrah's ball was angled in towards the stumps and Joe Root was trying to play an off drive, I would say, towards covers or in between mid off and covers, and inside edge lagi and he was clean bowled. The English captain Ben Stokes, he too couldn't add much to his overnight total. He was on 39 and he was dismissed on 44 of 110 deliveries. अगेन बाय जसप्रीत बुमराह. बहुत अच्छी बॉलिंग की आज बुमराह ने इनको भी इन स्विंग से बोल्ड किया and his off stump went flying. Then came in Jamie Smith, their wicket-keeper batsman, who has played magnificently throughout this series. उन्होंने अपनी third consecutive 50 मारी. He scored 51 of 56 deliveries and he was dismissed by Mohammad Siraj, and it was a very decent catch by Dhruv Jurel. So एक बहुत बाहर की deliveries थी, and Jamie Smith, what we would say in England, through the kitchen sink at it and उनका outside edge लगा and he was caught very decently by Dhruv Jurel. क्रिस वोक्स का उतना अच्छा सीरीज नहीं जा रहा एंड दैट कंटिन्यूड विथ द बैट एज वेल. ही वॉज आउट ऑन गोल्डन डक अगेन. बुमराह ने उनको आउट किया, कॉट बाय ध्रुव जुरेल. सो बुमराह की मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग रही एंड बुमराह के लिए बहुत अच्छा दिन रहा आज का. ब्राइडन कार्स, देयर बॉलर, जो थोड़ा बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं. इन्होंने हमने पहले भी देखा है कि इन्होंने फर्स्ट टेस्ट में भी कुछ टोटल अच्छे वैल्यूएबल रन्स ऐड किए थे एंड इस बार भी उन्होंने 56 रन्स मारे ऑफ 83 डिलीवरीज एंड ही वाज क्लीन बोल्ड बाय सिराज एट द एंड ऑफ इंग्लैंड इनिंग्स. Jofra Archer on his comeback couldn't add much. He was dismissed on 4, again bowled by Jasprit Bumrah. So Bumrah ने अपना fifer complete किया and with this fifer Bumrah became Indian with most fifer away from home, and also he became bowler with most fifer since the WTC commenced. So यार बुमराह की अगेन जितनी हम तारीफ करें, जितना भी बोले बुमराह के बारे में, वो कम ही रहेगा. ही वॉज ब्रिलियंट येट अगेन एंड अगेन इंग्लैंड के अगेंस्ट सिर्फ एक ही थ्रेट था इंडिया के पास, दैट वॉज जसप्रीत बुमराह, एंड इंग्लैंड उसको अच्छे से प्ले आउट नहीं कर पाई. जो रूट वॉज डिसमिस्ड बाय बुमराह, स्टोक्स वॉज डिसमिस्ड बाय बुमराह. सो येट अगेन यार बुमराह हैज़ रैटल्ड इंग्लैंड आउट एंड England were bundled out for 387. According to me, it's a very decent total. India should be able to get close to this total. अगर उससे ज़्यादा मारती है तो बहुत अच्छी बात है. Lead of 50-60 runs will be very valuable. Let's see how the Indian innings went. So India जब बैटिंग करने आई, India has scored 145 runs for loss of 3 wickets in 43 over so far. They are still trailing by 242 runs. अगर हम जोफ्रा आर्चर की बात करें तो उनका रिटर्न इन टेस्ट साइड हैज़ बीन बहुत समय से वेट था इस चीज़ का एंड उनका जो रिटर्न है बहुत अच्छा रहा. ही हैज़ डिसमिस्ड यशस्वी जायसवाल, जो बहुत अच्छे फॉर्म में बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं. फर्स्ट और सेकेंड मैच में बहुत अच्छे से बैटिंग करते आए हैं एंड दिस टाइम यशस्वी जायसवाल वॉज डिसमिस्ड बाय जोफ्रा आर्चर एंड इट वॉज again a very good delivery. Ball was swinging across Yashasvi Jaiswal and he was trying to just I think so punch करना चाह रहे थे. पंच था, डिफेंस था, somewhere in between, and it caught the outside edge and it was caught by Harry Brook, if I'm not wrong, again in second or third slip.
अगर हम इनके पार्टनर की बात करें सो के राहुल इम्पीरियस फॉर्म कंटिन्यूज, उन्होंने 50 रन्स मार चुके हैं, ही स्टिल बैटिंग, ही इज़ ऑन 53 ऑफ 113 डिलीवरीज। अगेन जो भी हो रहा हो इनके अराउंड, इनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपनी ही एक बबल में बैटिंग करते हैं। एंड वेन एवर ही डज दैट, वेन एवर ही इज़ नॉट डिस्टर्ब, वेन एवर ही इज़ very much concentrated on his game, he bats very well for India and वी होप कि कल के राहुल कंटिन्यू कर पाए। एंड जैसा कि हमने 4 साल पहले देखा था, उन्होंने लॉर्ड्स में 100 मारा था, कल ये फिर से लॉर्ड्स में 100 मार पाए। टॉकिंग अबाउट करुण नायर का ये कंसिक्यूटिव थर्ड टेस्ट है, उनको चांस दिया गया है, टीम ने उनको बैक किया है। एंड अगेन ही हैज़ प्लेड अ डिसेंट इनिंग, अच्छा स्टार्ट मिला, 40 रन्स मारे ऑफ 62 डिलीवरीज, ही वॉज सेट एंड देन अगेन ही थ्रू अवे हिज विकेट। थ्रू अवे भी नहीं बोलूँगा, एक डिसेंट डिलीवरी थी बेन स्टोक्स के द्वारा एंड कॉट हिज आउटसाइड एज, बॉल थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस का है, जैसा हमने बताया इस विकेट में थोड़ा सा इनवेरिएबल बाउंस मतलब मिल रहा है बॉलर्स को, सो एक्स्ट्रा बाउंस का है एंड इट वाज ब्रिलियंटली कॉट बाय जो रूट। वो फर्स्ट स्लिप में थे एंड वो अपने लेफ्ट साइड में डाइव मार के कैच लिया है, विच वॉज हिज 211th कैच एंड विद दिस कैच ही हैज़ बिकम प्लेयर विथ most catches in test cricket. So it has been an amazing डे ऑफ क्रिकेट फॉर जो रूट, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, बैटिंग भी अच्छी करी, 100 भी मारा एंड कैचिंग में भी अब ही इज़ द क्रिकेटर विथ मोस्ट कैचेस इन टेस्ट क्रिकेट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। आर कैप्टन गिल वॉज डिसमिस्ड ऑन 16। अगेन गिल को डिसमिस किया वोक्स ने। वोक्स की अगर हम बात करें सो जैसा मैंने पहले बोला था, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते आए हैं इस सीरीज़ में, बट अब उनकी तरफ से थोड़ा सा ग्लिमर ऑफ होप दिख रहा है, बॉलिंग में वो थोड़ा सा इम्प्रूव करे हैं। एंड कैच की बात करें तो जिमी स्मिथ ने कैच लिया, वो एक्चुअली स्टम्प्स के पास आके कीपिंग कर रहे थे एंड बहुत फेंट सा एक आउटसाइड से लगा था शुभमन गिल का एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली कॉट बाय जिमी स्मिथ। सो आई थिंक दिस विकेट बिलोंग्स टू जिमी स्मिथ, क्योंकि फास्ट बॉलर में स्टम्प के पास आके वैसे कैच लेना उतना इजी नहीं होता है, बट ही डिड इट, सो या क्रेडिट टू हिम, क्रेडिट टू वोक्स। एंड करेंटली ऋषभ पंत हैज़ जॉइंड के राहुल। ऋषभ पंत हैज़ स्कोर्ड 19 runs so far in 33 deliveries and let's see how things goes for India. India again has scored 145 runs for loss of 3 wickets and they are still trailing by 242 runs, so let's see कल का दिन कैसे रहेगा। आई एम होपिंग कि इंडिया शुड बी एबल टू गेट क्लोज टू द इंग्लैंड्स टोटल ऑफ 387। 20 रन अगर कम भी होता है तो भी मैच आपसे दूर नहीं गया है, अगर आपका 50 रन की भी लीड मिल रही है तो भी आपसे मैच दूर नहीं गया है। इंडिया शुड ट्राई एंड गेट एज क्लोज टू इंग्लैंड्स टारगेट एज पॉसिबल, क्योंकि ये विकेट ईजी नहीं है एंड फोर्थ इनिंग में इस विकेट में बैटिंग करना ईजी नहीं रहेगा। सो इंडिया को जितने भी एफर्ट मारना है, जितना भी बैटिंग में जितने रन्स वो अभी ऐड कर पाए उतना उनके लिए ईजी रहेगा फोर्थ इनिंग में। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, प्लीज़ आप लोग बताइएगा आप लोग के हिसाब से इंडिया कितने रन्स मारेगी इस इनिंग में एंड व्हाट इज़ द सुटेबल टारगेट अकॉर्डिंग टू यू कि इंडिया किस टारगेट को चेज कर सकती है। दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू।